Hello, everyone. Believe all of you are doing great. So, first of all, welcome back to this new season of Get Set Go. All of you might be aware, especially the people who are coming here for the next time, that we had season one of Get Set Go, which was received very well by all these students. So, in continuance with the same, we have decided to launch this season two of Get Set Go. So just to give you an introduction, what Get Set Go is all about. So here we invite certain champions who have cracked multiple entrance tests. So they share their success stories with all of us so that you have a guidebook in front of you, which you can use during your preparation. So without much delay, let's start the first episode of the second season for Get Set Go. On this very first episode of the second season, we have with us Mr. Abhijit Sonawne, a 99.2 percentiler in MBA CET 2021. Considering the nature of CET that it was, I think that is a big feat. I believe you know what I'm talking about. He is a Simsri convert, though later on decided to pursue a better option, at least as of now. He has converted multiple government and bank entrance tests and has been a champion throughout his journey. So, Abhijit, welcome to this show and thank you so much for being here. Thank you, sir, for inviting me in this show. Our pleasure. So, Abhijit, we will straight away head to the discussion. And Yes, I have looked at you throughout your preparation phase, and you have been a brilliant student, a hardworking yes, person, and again, congratulations on your brilliant percentile. So, yes, so the theme that we have decided to have for you. So I have certain questions with me, which yes, I have received from some students, which we have prepared. So even you would agree that a big set of students or a big group of students is the repeaters, right? yes, correct. So for not only for CET, but I believe for many Hmm. entrance tests. So Exams, yes, correct. specifically, I would like to ask you this question since you have a very good networking skill and you are in touch with many Yes, students that, yes, sir. and even you, I think, wrote CET for the second time. So I would like to know from you Yes. what are the common mistakes that repeaters do and maybe your tips on the same. Okay. So, sir, I will start like this. That many repeaters, they always tend to do the topics which they know, correct? They just avoid the topics which at which they are bad, correct? For example, like in my case, I was very bad at VARC. So I started my CET preparation for the second time in December 2020, correct? So after December 2020, when I started my preparation, I started directly giving the mocks, and at that time I was just focusing on the LR, quants, and abstract, and I was completely ignoring this VARC part, which I should not have did, correct? So after Jan and Feb passed out, and then in March I realized that the VRC is my the weaker section and I should improve it because CET got delayed. And that time when I got serious about the VRC part, so I think the VRC preparation for the VRC, which I have started in March, I should have started it in December only, because already my LR cons and abstract was stronger part, Right. but I was keeping improving it. But I should have started with the preparation for the VRC on the early stage. So for the students who are repeating this year, they should start focusing on their weaker section first and later on practice their stronger part. And I'm not saying that completely ignore the stronger part. You keep practicing it, but give more preference to the your weaker section. Right. I think very well said. So, if I would have to summarize what you said, so first of all, I believe identifying the weak area is very crucial, like you Yes, did, yes, because there are many students who believe that they are good. They just go about the journey, they just keep on writing mocks, the regular preparation, but it is very crucial to identify what your weak area or areas are, like you did yes, for VRC, and then maybe you know get up to speed for that particular section also and try to improve as much as possible. So yes, great, I think that is first thing that you said. And second, you also mentioned about time, yes, the proper
planning, or I would say a proper management of the entire schedule will help the student to cover the entire spectrum of syllabus in a better way. Yes, correct. Right. So मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभिजीत इसी लाइन पे है. अभी Yes, sir. सिंस थोड़ा थीम हम रिपीटर्स के ऊपर देख रहे हैं, सो Yes. एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कि सिंस मैंने भी एक बार रिपीट किया था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो एस्पायरेंट्स के दिमाग पे होता है जब वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, दैट इज प्रेशर. मल्टीपल टाइप्स के Yes. प्रेशर होते हैं. सो सोसाइटी को लेके, फैमिली को लेके, पीयर प्रेशर भी होता है. यार मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने तो एमबीए स्टार्ट कर दिया, किसी ने जॉब स्टार्ट कर दिया, एंड ऐसे काफी चीजें आपको बार बार आके टोल रही होती है, एंड स्पेशली जब आपका स्कोर मॉक में कम आता है देन ये चीजें और बढ़ जाती है. सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, हाउ डिड यू हैंडल द प्रेशर ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? Okay. So see, sir, I would like to address the every students who are watching this कि pressure तो आएगा. You can't just go away with it. आपको pressure तो आने वाला है, आप उससे भाग नहीं सकते हो. So you should know how to manage it. For example, if there is a pressure from the family side, then you have to convince your family that you are performing well in the mocks. You are doing great, and you have to show them the score of your friends and score of yours, so that कि family को पता है कि या आप कुछ पढ़ रहे हो, and उनको दिखना भी चाहिए कि आप पढ़ रहे हो घर पे. ऐसे नहीं कि जस्ट बुक खोल के बैठे और कुछ नहीं कर रहे हो, एंड उसका रिफ्लेक्शन भी आपके मॉक्स में आना चाहिए. सेकेंड थिंग इज द पेयर प्रेशर, जो कि बहुत बड़ा प्रेशर होता है. एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो फैमिली से भी बड़ा प्रेशर पेयर प्रेशर होता है, एंड पेयर प्रेशर भी मल्टीपल प्रेशर होता है. जैसे सर ने अभी कहा कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो अभी ऑलरेडी एमबीए कर रहे हैं, आपके जो फ्रेंड्स है, आपके जो भी कलीग्स है जो अभी एमबीए कर रहे होंगे, आपको लगेगा कि यार वो मुझसे 1 साल आगे है, बट दैट डजंट मैटर बिकॉज 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन कुछ डिफरेंस नहीं पड़ता कि आप कब ग्रेजुएट होते कब नहीं. अगर आप अभी करंटली देखोगे आपके साथ जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आप शायद सभी 2020 पास आउट होंगे, बट कुछ लोग हैं जो 2016 के पास आउट भी अभी एग्जाम देने वाले हैं सीईटी के. मैं ऐसे बहुत से लोग जानता हूँ जो 2017 पास आउट है बट अभी वापस देने वाले हैं. सो दिस इज वन ऑफ द प्रेशर. यू शुड थिंक इन दिस वे कि 10 years एंड 5 years डाउन द लाइन की जो एज गैप है या फिर जो भी करियर गैप है वो मैटर नहीं करेगा. द सेकेंड पेयर प्रेशर विच कम्स इज अबाउट द मॉक स्कोर. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने एक मॉक दिया, जैसे आई यूज टू गिव मल्टीपल मॉक्स, तो इट इज आवर ह्यूमन टेंडेंसी, इट इज आवर स्टूडेंट टेंडेंसी कि हम उसे डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड के साथ. करेक्ट. सो जब भी आप अपने फ्रेंड के साथ करने डिस्कस करते हैं, तो अपने दिमाग में एक रहता है कि उसको स्कोर बता समय कि अरे मैंने ये मॉक दिया था, तुझे कितना आया. सो वो आपको रिप्लाई कर उससे पहले आप एक डिसाइड करते कि उसका इतना इतना स्कोर आया रहेगा. अगर आपके एक्सपेक्टेड स्कोर से उसका कम आया तो ठीक है, बट ज्यादा आया तो यू फील लाइक कि अरे मैं तो उसके पीछे हो गया, बट ये तो मुझसे इतना वीक था, ये आगे कैसे चला गया. बट यू हैव टू थिंक लाइक दिस कि एग्जाम डे पे टेबल टर्न्स होते हैं, बहुत टेबल टर्न्स होते हैं. कि जैसे जो बंदा 140 या 150 स्कोर कर रहा है मॉक्स में, वो एग्जाम डे पे 100 भी स्कोर नहीं कर पाता है कभी कभी. एंड द पर्सन हु इज स्कोरिंग लेस देन 110 or else in the range between 110 and 120, that person can also score 140 plus in the on the D-Day. So आपको ये याद रखना है कि peer pressure के लिए मॉक्स के टाइम पे बेसिकली मॉक्स का स्कोर तो आप बेसिकली डिस्कस मत करो आपके फ्रेंड के साथ, सिर्फ जहां पे आपके रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे उसे डिस्कस करो. एंड अगर किसी का स्कोर ज्यादा आ रहा है आपसे तो कोई टेंशन मत लो, क्योंकि आपके पास और बहुत टाइम है. आपके पास 10 दिन होंगे, 20 दिन होंगे, जो भी जब भी आपका एग्जाम होगा, तब तक आपको खुद के इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है और किसी से कंपैरिजन नहीं करना है. एंड द सेकेंड थिंग इज कि आप फैमिली प्रेशर से बचने के लिए और एक आप थोड़ा बैकअप रखो कोई एक दूसरे एग्जाम का. जैसे मैंने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स का बैकअप रखा था. अगर सीईटी में अच्छा नहीं हुआ, so I will go for the government job. That was my plan. Yes, that's it, sir. Excellent. I think Abhijit, some interesting points, and I'm really happy with the clarity that you possess. So 3 to 4 points that came out of your conversation was first, convincing parents or giving them confidence about your journey, and your point of self competition. So it's always in any competitive examination, of course, you have a percentile system, but you can hardly help what someone else is doing, right? It's more about what Yes, you are correct. doing on yourself so that you can climb up the ladder. So I believe it should be Correct, more correct. about कि आज अगर मुझे 100 आए हैं तो नेक्स्ट मॉक में हाउ आई कैन गो टू 105 और 110. दैट शुड बी माय गेम. एंड Exactly. बैकअप वाली चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मे बी स्टूडेंट्स नोट डाउन कर सकते हैं कि मे बी नॉट मेनी बट मे बी
like a couple of options can prove to be very handy, especially when you're preparing for Yes. an important examination. Great. So Mm. And on so the same, I would like to yeah, address one more point also. yeah, दैट सर बैकअप में भी कुछ लोग, जैसे अभी आपने कहा कि कुछ लोग होते हैं कि बहुत सारा बैकअप रख लेते हैं एंड उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये करे या वो करे. right. बैकअप ऐसा रखो कि जो आपके करंट प्रिपरेशन से मैच हो, Hmm. सो दैट अगर आपका प्लान ए वर्क नहीं किया तो प्लान बी के लिए आपको एक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं करना है, प्लान ए के एफर्ट पे ही आप प्लान बी एग्जीक्यूट करोगे. सो बैकअप शुड बी लाइक दैट. ऐसे नहीं कि आपने प्लान ए रखा, प्लान बी रखा और प्लान बी इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्लान ए, तो वो एक अलग प्लान ए बन जाएगा वो. राइट करेक्ट, राइट राइट, दैट्स द थिंग. एग्जैक्टली. ये भी बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि काफी लोग बैकअप तो रखते हैं, बट देन मे बी वो जो दो एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है. उनका जो एंड पॉइंट है या फिर इवन उनका जो सिलेबस है उसमें भी काफी डिफरेंस होता है, तो वो बहुत प्रॉपरली सोच के डिसाइड करने चाहिए बैकअप्स. दैट इज राइट. My next question, Abhijit, to you, it's somewhere around mocks, because especially in CET, which is a test against time, writing mocks becomes crucial. But still, there are many students who do not take this point seriously. I still remember when I was talking to you during your preparation time, you had mentioned that you had crossed the 50 mark as far as the number of mocks is concerned. So I think you're a better person to answer this. Until the How exam date, important, yeah, how important is writing mocks for an aspirant, according to you? okay. So sir, I would like to address the myth related to mock first. Okay. So students में ये myth बहुत चलता है कि एक speed based exam है तो आप बहुत सारे मॉक्स दो. मे बी इस मिथ के अंडर आके मैंने भी बहुत सारे मॉक्स दिए, बट इट इज नॉट द एक्चुअल केस. एंड और एक मिथ चलता है कुछ स्टूडेंट में कि अरे मॉक वगैरह कुछ मैटर नहीं करता, बस प्रिपरेशन मैटर करता है, प्रिपेयर करके मॉक जाके एग्जाम देके आओ. दैट इज नॉट द केस. यू हैव टू कीप द बैलेंस बिटवीन द प्रिपरेशन एंड द मॉक्स. सो अगर ऐसा कुछ नंबर पूछोगे कि सर कितना मॉक्स देना चाहिए, तो देर इज नॉट एनी नंबर, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. मॉक्स आपको इसलिए देना है सो दैट आपको पता चले कि आपको क्या नहीं आता है. बट बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉक इसलिए देते हैं ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें क्या आता है. नो, दिस इज नॉट द केस. आपको एग्जाम के दिन पे आपको ये नहीं करना है कि मुझे ये 150 सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. आपको ये डिसाइड करना है एग्जाम दिन पे कि आपको ये 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन द स्पीड बेस्ड एग्जाम. जो भी स्पीड बेस्ड एग्जाम होता है उसमें आपको क्या नहीं सॉल्व करना है ये पता होना इंपॉर्टेंट है, एंड उसके लिए मॉक्स होते हैं. सो अगर आपने 15 मार्क्स दिए एंड 15 मार्क्स में आपको अगर पता चल जाता है कि वो 50 क्वेश्चंस कौन से हैं जो मुझे स्किप करने, या फिर वो 40 क्वेश्चन या वो 60 क्वेश्चन, दैट नंबर डिपेंड्स ऑन यू एंड योर टारगेट. वो क्वेश्चन अगर आपको पता चल जाता है 15 या 20 मार्क्स में, देन 20 मार्क्स इज आल्सो सफिशिएंट. बट अगर आपको वही क्वेश्चंस को पता करने के लिए 40 या 35 मार्क्स की जरूरत है, देन यू हैव टू गिव 35 या 40 मार्क्स. In my case, I personally went till 75 plus marks till the exam date. But I think if I have to go in my past and I have to guide myself, so I will say कि अभिजीत बस 40 marks या 30 marks तक दे दे, बस उससे ज्यादा नहीं. Because that is enough. उतने में पता चल जाता है कि हमें क्या नहीं आता है. Because students में ऐसा होता है ना, पहले 30 marks जो बहुत सारे marks देते हैं. In my case जैसे मेरे पहले 30 marks तो मुझे यही समझने में लग गया है कि मॉक्स का रियल यूज क्या है, मॉक्स का रियल ऑब्जेक्टिव क्या होता है. सो मॉक्स का रियल ऑब्जेक्टिव आप ये दिमाग में रखो कि आपको क्या सॉल्व नहीं करना है, ये पता करना है मॉक्स से. Great. I think that's a brilliant answer, Abhijit. So जो आपने वो सेंटेंस बोला कि मॉक का पर्पस होना चाहिए ये जानना कि हमें क्या नहीं आता है, दैट इज वेरी वेल पुट. सो इवन स्टूडेंट से बात करते समय काफी बार हमें ये लगता है दैट मॉक्स स्टूडेंट्स इसलिए देते हैं कि वो लास्ट की विंडो आए और उनको वो छोटा सा हैप्पीनेस दिख सके कि अरे मेरा ये स्कोर है, मेरा परसेंटाइल इतना है एंड आई एम हैप्पी नाउ. देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आफ्टर द मॉक हु विल सिट डाउन, who will look into it कि मेरे क्या गलत हुआ है और मैंने अभी जाके मैंने किस टॉपिक पे 30 40 50 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए. एंड योर आंसर इज वेरी वैलिड. द नंबर ऑफ मॉक्स इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल्स प्रिपरेशन लेवल. अगर कोई बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड है तो उसका नंबर अलग रहेगा. किसी अगर और जरूरत है प्रैक्टिस की तो उसे पहले प्रैक्टिस करके फिर मॉक्स पे ध्यान देना पड़ेगा. सो अ ब्रिलियंट आंसर. सो मे बी बट फ्रॉम योर आंसर व्हाट आई कुड गेट इज 30 plus could be a good number, and of course Yes. not writing too many mocks too, but 30 to 40 should be a good number. Great. Yes. Great. And so one more thing,
इफ वी राइट मेनी मॉक्स ना, तो उसमें अपना टाइम भी जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल सी अ पर्सन इज राइटिंग 30 मॉक्स, तो 30 मॉक्स इनटू 2.5 आवर्स एंड प्लस जो भी उसका एनालिसिस का टाइम है उतना उसे लगेगा. बट इफ द पर्सन इज राइटिंग, समवन इज राइटिंग 45 मॉक्स, सो 15 मॉक्स का टाइम, लिखने का टाइम एंड द एनालिसिस का टाइम, उतना टाइम वो प्रिपरेशन में भी पुट कर सकता है. तो दिस इज द थिंग. तो अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने ज्यादा मॉक्स दिया तो हमारा प्रिपरेशन ज्यादा होगा, वैसे नहीं होता. मॉक्स में आप कुछ प्रिपेयर नहीं करते हो, मॉक्स में सिर्फ आप अटेम्प्ट करते हो. आपको ये समझना है कि मॉक्स को उस हिसाब से मैनेज करना है, इस हिसाब से आपको टाइम कैलकुलेट करना है कि जितने भी आप कम मॉक्स दे रहे हो उतना टाइम आप प्रिपरेशन में पुट करो. कम मॉक्स का मतलब कम प्रिपरेशन ऐसे नहीं है, कम मॉक्स मतलब ज्यादा प्रिपरेशन होगा आपका. राइट. सो लाइक यू सेड इन योर प्रीवियस आंसर दैट एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बहुत कम भी नहीं. वेरिन काफी लोग आते हैं एंड बहुत प्राउडली बोलते हैं कि सर मैंने तो 5 ही मॉक दिए थे, स्टिल मैंने 90 स्कोर किया. एंड सो आई बिलीव अ बैलेंस इज नेसेसरी एंड यू राइटली पॉइंटेड इट आउट. So, my next question to you, I think this is an integral question and which many students would be waiting to listen, is the CET 2021 was a highly unpredictable piece. That is what Yes. I can say. And there were many students who were in a state of frenzy, जिनको कुछ समझ नहीं आया था जब पेपर उनके सामने आया था. Multiple slots, students के फोन आते थे कि सर पता नहीं है क्या हो गया. And there were hardly few students who were very positive about the paper, but still आपके जैसे कुछ students ने अच्छा किया उस पेपर में. So my question to you is, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में एक बहुत हाई अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, तो आपने खुद को कैसे पॉइज्ड रखा एंड आपने आपका परफॉर्मेंस कैसे बनाए रखा ऑन द डी डे ऑफ सीईटी? Okay. So, sir, for any competitive exam, everyone should understand this कि जो पेपर मैं सॉल्व करने वाला हूँ डी डे पे, वही पेपर बाकी लोग भी सॉल्व करने वाले हैं. करेक्ट. इफ द क्वेश्चन इज टफ फॉर मी, देन इट इज टफ फॉर द अनदर पर्सन आल्सो, एंड मेरे कॉम्पिटिटर्स के लिए भी वो टफ होगा. एंड द सेकंड थिंग, इफ द पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, जैसे इस साल सीटी में हुआ था, पेपर पैटर्न वाज अनएक्सपेक्टेडली चेंज. द क्वेश्चन सेक्शन वाइज नहीं थे. कुछ टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे, कुछ टॉपिक से कम क्वेश्चन आ गए थे, इवन आउट ऑफ सिलेबस के भी कुछ टॉपिक्स थे. बट ये सिर्फ मेरे साथ अकेले के साथ नहीं हुआ, ये सबके साथ हो रहा था. एंड आई वाज वेरी क्लियर विद दिस थॉट कि जो भी होगा वहां पे वो मेरे अकेले के साथ नहीं होने वाला, सबके साथ होने वाला है. सो व्हेन द I saw the paper, there was no sectional. In the instruction, it was mentioned that there will be a no sectional questions. There will be a 200 questions, and I was kind of happy because the strategy which I was using for attempting the exam, it was the round strategy, round A, round B, and round C. So मुझे वैसे भी सेक्शन वाइज चाहिए नहीं था क्वेश्चन. So मेरे लिए अगर विदाउट सेक्शन आ रहा है, so it was a plus point for me. एंड मैंने दिमाग में ये रखा था, इफ आई एम सॉल्विंग 1 to 200, देन आई विल जस्ट सॉल्व द इजी क्वेश्चन फर्स्ट. मतलब अगर मुझे इजी क्वेश्चन दिख रहा है तो मैं उससे पहले सॉल्व करूंगा. एंड दैट डजंट मैटर कि इजी क्वेश्चन कितने हो, 100 हो, 120 हो या 50 हो. इफ आई एम सॉल्विंग द 50 क्वेश्चंस इजी, देन दैट मींस सबने भी 50 क्वेश्चंस ही इजी सॉल्व किए. सो मैंने पहले इजी क्वेश्चन सारे सॉल्व किए, देन आई वेंट ऑन द मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, एंड देन जो बचे हुए टाइम में मैंने हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए. तो दिस वाज माय स्ट्रेटजी, एंड इसी स्ट्रेटजी की वजह से मैंने बाकी के एग्जाम्स भी क्रैक किए. एंड आई फील दैट दिस स्ट्रेटजी इज द जो स्ट्रेटजी हम लोग बचपन से यूज करते आते हैं एग्जाम में. जैसे 5th स्टैंडर्ड से अपना क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर अलग हो गया था, तभी हम यही करते थे कि जो इजी क्वेश्चन उसे पहले नंबर लिख के सॉल्व करते थे, एंड देन बड़े लेंथी क्वेश्चन को बाद में करते थे. तो यही जो बेसिक स्ट्रेटजी है, यही हमें सारे एग्जाम्स में अप्लाई करनी है, जिससे फिर पेपर फिर कैसे भी आने दो, कितना भी टफ आने दो, कितना भी इजी आने दो, कैसे भी आउट ऑफ सिलेबस आने दो, या फिर पेपर पैटर्न ऑन द स्पॉट चेंज होने दो, अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, इजी फर्स्ट, मॉडरेट देन मॉडरेट एंड देन टफ, तो आपका डेफिनेटली वो एग्जाम अच्छा जाना ही है, एंड दैट टू विदाउट प्रेशर. Brilliant. I think you made it very simple for all those students. Like you said कि it is more about realizing कि paper सबके लिए same ही है, and that's a very good, I think, a mental tonic that everyone can take. And the second thing that you said was rightly put. I think important ये है कि हम ये देखें हमें क्या आ रहा है. फिर जैसे आपने कहा कि वो 50 हो, 100 हो, 120 हो, let me solve the easier questions first and then let me play by my strengths जो फिर मैं पिक करूंगा. आई थिंक दैट इज वेल सेड. एंड और एक चीज जो मुझे लगता है दैट आई वुड लाइक टू से इज दैट बीइंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एक 10% सरप्राइज तो हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप पकड़ के चलो.
though the Yes. case was slightly different here. I won't comment on that, but Yes. so understood. But like you said, it's more about competition. अल्टीमेटली Yes. आपको क्या करना है, उस दिन पे जो सरप्राइजेस आ रहे हैं, मेक श्योर कि आप आपके स्ट्रेंथ को खेल के पहले आपका एक बेसिक स्कोर बना लो, एंड उसके ऊपर देन ट्राई एक्यूमुलेटिंग पॉइंट्स फ्रॉम द अदर एरियाज. एंड इवन सर आई वुड लाइक टू एड्रेस वन मोर थिंग कि जैसे एक अपना एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि हम अगर गलती हम भी कर रहे हैं तो हम उसे दूसरे पे पुट करते हैं, करेक्ट. सो हमें ये नहीं सोचना है एग्जाम के दिन पे कि अरे पेपर पैटर्न खराब हुआ तो मेरा बहुत ही चेंज आएगा स्कोर में जो एक्चुअल जितना आना चाहिए. सो सी इफ द पेपर पैटर्न इज चेंजिंग और द एनीथिंग अगर डिफिकल्टी लेवल भी चेंज हो रहा है, सो देयर विल बी अ स्लाइटली डिफरेंस इन योर एक्चुअल स्कोर व्हिच यू आर डिजर्विंग. ऐसे नहीं कि आप 150 डिजर्व कर रहे थे एंड आपका 90 या 100 स्कोर आ गया, ऐसे नहीं होगा. इफ यू आर डिजर्विंग 130 और अगर पेपर कुछ आगे पीछे हुआ तो देयर विल बी स्लाइटली चेंज ऑफ 2-3 मार्क्स, उससे ज्यादा नहीं होता. हाँ, बट अगर आप एग्जाम के टाइम पे अगर उसे दिमाग में रख लेते हो कि अरे नहीं पेपर पैटर्न चेंज हो गया, डिफिकल्टी चेंज हो गया, नाउ देयर विल बी अ ड्रास्टिक चेंज इन माय स्कोर, तो आपका डेफिनेटली ड्रास्टिक चेंज होना ही है एग्जाम में. तो राइट. ऐसे आपको प्रेशर को कम से कम रखना है. आपको ये समझना है नहीं कैसा भी आए पेपर फेयर होने वाला है. आपको ये दिमाग में रख के जाना है कि एनीथिंग हैपेंस ऑन द डी डे, अगर मेरा सिस्टम बीच में भी बंद हुआ 10 मिनट्स के लिए तो भी मेरा पेपर फेयर ही है. मुझे यही समझ के आगे का पेपर सॉल्व करना है. Right, right. In fact, I was talking to one of the students who appeared for CET 2021, and she is a student जिनके mouse में I believe problem था. तो but still I think she made her way. She is now into Sydenham, but she made her way despite the challenges, and that is again a good thing. I think a sign of a champion that comes up कि दिक्कतें आ जाए but हमें हमारे साइड से लड़ना है. I यस, think करेक्ट. that, yeah, so that's important. My next question to you, Abhijit, is so especially since हम theme repeater लिया है हम लोगों ने, so आपको क्या लगता है, काफी बार जो रिपीटर स्टूडेंट्स होते हैं वो हमने देखा है कि उसी टाइप की मिस्टेक्स फिर से करते हैं जो लास्ट ईयर किया था, या फिर वो थोड़ा सा एक जोन आ जाता है कि नहीं मतलब आई एम ओके, मैं मॉक्स दूंगा, मैं वीडियोस देखूंगा एंड आई विल बी, आई थिंक, कंफर्टेबल. सो आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन. आपके लिए आपको क्या लगता है कि एक एस्पायरेंट के लिए उसके जर्नी में मेंटर होना कितना इंपॉर्टेंट है? सो मेंटर कुड बी एनीवन, लाइक मे बी अ फ्रेंड और मे बी अ सीनियर or a teacher or someone like that person. So according to you, what do you believe, should you have a mentor or how important is it? Sir, in any competitive exam, let it be CET or any government exam, or even if we say about UPSC, the exam like UPSC, or any lower exam like CTET, जो teachers का होता है, in every competitive exam where there is a competition, you need a mentor. You should definitely have a mentor because during the preparation journey, there will be a many ups and many downs, and that at the down phase, जब भी आप लो फील करते हो, जब भी आपको पता नहीं कि आपका स्कोर बढ़ नहीं रहा है मार्क्स में, आपको पता नहीं कि आप इतना मेहनत कर रहे हो बट आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, बिकॉज आप भले आप दोस्तों को बोल दोगे मुझे आ रहा है, सब घर पे बता दोगे, बट यू नो द रियल यू. सो वैसे टाइम पे मेंटर का होना बहुत जरूरी है. एंड मेंटर सिर्फ आपको मोटिवेट ही नहीं बट वो आपको डायरेक्शन करेक्ट बताता है. सी यू कैन डू द हार्ड वर्क, नो डाउट इन दैट. अगर आप किसी चीज के लिए सीरियस हो, अगर आपको जेबी जाना है तो आप हार्ड वर्क करोगे, बट उस हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना और उसे सही डायरेक्शन देना एक मेंटर का काम होता है. एंड जैसे सर ने बोला दैट मेंटर कैन बी एनीवन, फ्रेंड भी हो सकता है, एक टीचर भी हो सकता है, क्लासेस के आपके सर हो सकते हैं, या फिर एनीवन हु इज करंटली स्टडीइंग इन द जेबीआईएमएस, या फिर जो जेबीआईएमएस से पास आउट है, दैट कैन बी द मेंटर. बट आपको मेंटर भी सही से चूज करना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ऐसे नहीं कि आपका दोस्त इस बार सीईटी दे रहा है तो साथ में बस पढ़ रहे हो, तो Right. उसको खुद नहीं पता तो वो क्या आपको बताएगा. सो मेंटर शुड बी द पर्सन जिसने एक्चुअली वो उस फेज के थ्रू गया हुआ है, या फिर उसने एक्चुअली एग्जाम को क्लियर किया है. करेक्ट. Right. सो आपको मेंटर रखना ही चाहिए, एंड मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टूडेंट लाइफ हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. वेरी वेल पुट. सो मेंटर, राइट, वो एक, जैसे आपने एक लाइन यूज की कि एक दिशा दिखाने का काम करता है. सो ऑफ कोर्स एफर्ट्स तो हमें ही डालने हैं, स्टूडेंट को ही डालने हैं वगैरह, बट काफी बार हो ये जाता है कि एक जो एंगल होता है जो हम कभी कभी मिस कर जाते हैं कि यार मैं कॉन्ट्स पे ये मेहनत तो कर रहा हूँ, या फिर मैं मॉक्स इतने तो दे रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं हमसे शायद वो मिस हो जाता है. बट मे बी अ पर्सन, एंड यू पॉइंटेड आउट अ वेरी गुड थिंग सेकेंडली, कि मेंटर भी बहुत ध्यान से चूज करना चाहिए, बिकॉज आजकल मेंटर्स की कमी नहीं है, तो उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है चूज करना, क्योंकि वो समझना भी उस मेंटर को कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो, आप कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो.
that is also very important. So of course mentor can be a plus thing for not only MBA CET but for any entrance test. Okay. एंड वन मोर थिंग Yeah. कि मल्टीपल मेंटर्स मत रखो प्लीज नहीं तो Right. ऐसे होता है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में होते हैं, सभी लोग हाँ, होते हैं, right. वहां पे भी कुछ ग्रुप में मेंटर्स होते हैं कि अरे मतलब अगर आप बोलोगे अरे ये क्वेश्चन ऐसा था, आप क्वेश्चन डाउट डालोगे ग्रुप में एंड फिर उसमें 4-5 लोग कमेंट करेंगे अरे वैसे नहीं, वैसे सॉल्व कर, वैसे नहीं, और उसको पूछेगा तेरा कितना स्कोर है, 80 स्कोर आ रहा है 200 में से। तो Right. ऐसे भी मेंटर मतलब हम्म। सही से देखो कि आप जो भी एडवाइस ले रहे हो किससे ले रहे हो, एंड Right. कीप द मिनिमम नंबर ऑफ मेंटर्स। ऐसे नहीं कि 6-7 मेंटर्स बहुत से लोगों का सुन रहे हो, जैसे एक प्रोवर्ब है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रूथ। तो Right. इट इज वेरी ट्रू, अगर आप मेंटर्स रहोगे तो आपका जितना एफर्ट आप डाल रहे हो टोटली वेस्ट हो जाएगा। Right. 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 Fine. So Abhijit, here we come to the concluding point of the discussion. So since you have been, in fact, you are a champion yourself. So maybe दो तीन tips that you would like to give for MBA CET 2022 aspirants. ओके, सो सबसे पहले आपको, अगर आप सीईटी के लिए प्रिपेयर करो, वेदर यू आर अ फ्रेशर और रिपीटर, आपको आपके वीक सेक्शंस, वीक टॉपिक्स पता होना जरूरी है। बिकॉज वीक टॉपिक्स पता होने से आप दो चीज कर सकते हो, या तो उसे इम्प्रूव कर सकते हो, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप उसे एग्जाम के दिन पे अवॉइड कर सकते हो। बट अगर आपको वो पता ही नहीं कि आपका वीक टॉपिक है, तो एग्जाम के दिन पे साइकोलॉजी ऐसे वर्क करता है कि अगर आपको कोई टॉपिक दिखा एंड यू फील कि आपसे वो सॉल्व होगा, यू डोंट नो कि वो आपका वीक टॉपिक है या नहीं, बट आपको फील हो रहा है कि आपसे सॉल्व होगा, बट एक्चुअल में अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो उतना टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो Right. सबसे पहला पॉइंट, आपको आपके वीक टॉपिक्स पहचान लेने हैं, करेक्ट। द Hmm. सेकंड थिंग आई वांट टू एड्रेस इज कि आपको फोमो नहीं रखना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे मेरे केस में बहुत हुआ, मेरे जो फ्रेंड्स हैं अभी जो देखेंगे वीडियो, उन्हें भी पता है कि आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फोमो। तो इसलिए मैंने बहुत सारे मल्टीपल प्रोवाइडर्स के मॉक्स भी लिए थे, मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करता था, मतलब बहुत कुछ करता था, तो बहुत से लोगों से बात भी करता था, जैसे सर ने बोला आई हैव अ गुड नेटवर्किंग स्किल। तो मैं फोमो की वजह से ये सब करता था, लोगों से बात करता था, बहुत सारे मौके था। तो आप फोमो मत रखो, बिकॉज सी जो आप अल्टीमेटली जितना मेहनत करोगे, जितना एफर्ट्स पुट करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। ये डाउट मत करो कि नहीं मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। देर इज द, ये ऐसा कह सकते, दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर, कि आप जितना एफर्ट्स करोगे आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये दिमाग में रखो इस पॉइंट को, एंड उस हिसाब से फोमो मत रखो। एंड पीयर प्रेशर या फिर किसी भी तरह का प्रेशर मत लो, किसी भी तरह का प्रेशर आपको नहीं लेना है। आपको जस्ट आपके प्रिपरेशन में जो आपने प्लान बनाया है, या फिर आपको जैसे मेंटर आपके गाइड कर रहे हैं, उसी प्लान पे, उसी गाइडेंस पे आपको चलना है, आंख बंद करके चलो। अगर आपका मेंटर सही है, आप अगर कॉन्फिडेंट हो आपके मेंटर के बारे में, तो आपको जैसा भी बता रहा है वो मेंटर, या फिर आपने खुद से भी जो प्लान बनाया और आप कॉन्फिडेंस हो उस प्लान के बारे में, तो आप उसी प्लान को फॉलो करो विदाउट एनी डाउट। कुछ खुद पे सेल्फ डाउट करो मत। एंड द अनदर थिंग इज कि मॉक टेस्ट दो, लेकिन ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो। एंड एनालिसिस के टाइम पे मॉक के आप करेक्ट क्वेश्चंस को भी वापस सॉल्व करो। बहुत से स्टूडेंट्स से, मैं बहुत से लोगों से बोलता था जो मेरे दोस्त थे, वो लोग क्या करते थे कि करेक्ट क्वेश्चंस को वापस सॉल्व नहीं करते थे। तो आपको रॉन्ग क्वेश्चंस तो सॉल्व करना ही है, क्योंकि वो तो आपका रॉन्ग हुआ है, आपको करेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, एंड स्किप्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वापस। मतलब सारे क्वेश्चन है 200 क्वेश्चन को आपको वापस सॉल्व करना है। एंड एनालिसिस के पॉइंट में आपको जब भी आप कोई भी एक शीट लिखोगे आपका बुक में या फिर नोट्स करोगे, तो उसमें आपको जो भी आपके वीक टॉपिक्स है उन्हें नोट डाउन करने हैं कि ये मेरे वीक टॉपिक से, ये टॉपिक मैंने मॉक में मिस कर दिया, फिर ये मुझसे नहीं हुआ, तो दैट आपको वो पहचान लेना है। दैट्स द थिंग। एंड प्रेशर मत लो, मेन चीज ये है कि प्रेशर आप जितना लोगे उतना आपका प्रिपरेशन इफेक्ट होगा। बट ऐसे भी नहीं एकदम फ्री हो जाओ कि नहीं बस एकदम चिल कर रहे हो, ऐसे भी नहीं। थोड़ा बहुत सीरियस रहना, थोड़ा बहुत नर्वस होना ठीक है, बट ज्यादा प्रेशर मत लो। ओके, Okay. दैट्स इट। Brilliant. I think so many points for the aspirants to take. So just to sum it up in one basket, I would say कि first of all, जैसे आपने पहले भी कहा था कि वीक एरियाज आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो करो और उस पर काम करो। बिकॉज ये बहुत वैलिड आपने कहा अभिजीत, क्योंकि मैंने देखा है कि हाँ ऑफ कोर्स ये कहा जाता है कि प्ले बाय योर स्ट्रेंथ्स, बट मुझे लगता है लोग इसको बहुत एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं। सो वी हैव यस, सीन कि करेक्ट। स्टूडेंट्स आर ऑफ द ओपिनियन, नहीं सर मैं रीजनिंग में 75 जो मेरा पार्ट है उसमें सर मैं मैक्सिमम निकाल लूंगा, एब्स्ट्रैक्ट पे कर लूंगा, कौन सर ठीक है 5-10 आए तो भी चलेगा। बट लाइक यू सेड कि आई एम नॉट सेइंग आप उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच करो आपको वीकनेस को, बट आपके वीक एरिया में भी कुछ टॉपिक्स हमेशा ऐसे होते हैं जो इंप्रूव हो सकते हैं विद प्रैक्टिस। सो दैट इज फर्स्ट करेक्ट। पॉइंट। सेकंड जो आपने कहा कि बी वेरी सिलेक्टिव
with your approach. Be very selective while selecting a mentor, be very selective while writing Yes. mocks. तो पूरे प्रिपरेशन में सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है. मैं कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ सोशल मीडिया पे, किस सिलेक्टिव अबाउट टेस्ट सीरीज, सिलेक्टिव अबाउट मेंटर्स. सो आई थिंक सिलेक्टिव इज वन वर्ड विच द एस्पायरेंट्स कैन टेक. और एक चीज मैंने देखी कि प्लान होना बहुत जरूरी है, जो कि आपके आंसर से कहीं ना कहीं निकल के आया कि स्टूडेंट शुड हैव अ वेरी गुड प्लान, एटलीस्ट एक 2-3 मंथ्स का रेडी, कि हाँ रफली मुझे ये करना है, ये करना है, इस मंथ में मुझे इतने नंबर ऑफ मॉक्स देने हैं, मुझे ये चैप्टर्स इंप्रूव करने हैं. The very good point that the students got to know is about the balance between test writing and analysis. So जैसे आपने कहा Yes. कि पूरे 200 क्वेश्चंस गो थ्रू करो, जो आपके राइट आए उसमें भी देखो कि इज देयर एनी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड ऑफ कोर्स जो रॉन्ग और स्किप किए हुए वो तो देखने ही. एंड लास्टली प्रेशर की चीज भी आपने बहुत सही कही. और आई स्टिल रिमेम्बर इन स्पोर्ट्स इट इज यूजुअली सेड कि थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा नर्वसनेस, इनफैक्ट इट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ यू. सो वो तो Correct. जरूरी Correct. होता है, बहुत ही ज्यादा आराम में रहे, सो इट्स लाइक अ कैजुअल एटीट्यूड डिस्प्ले होता है. सो ब्रिलियंट, आई थिंक सो मेनी पॉइंट्स फॉर द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन. एंड इनफैक्ट वो फिर से बैक करके भी कुछ चीजें देख सकते हैं अगर उनको लगे. सो अभिजीत, आई थिंक it's been a beautiful session and so many good insights from a person who has gone through it and who has championed the journey. So thank you so much once again for being here, for giving us your precious time, and we wish you all the best for your future endeavors. Thank you, sir. Thanks a lot, sir, for providing me such an opportunity to share my preparation journey and some tips with our fellow students. Yeah. It's in fact, it's a pleasure for us. Thank you so much, Abhijit. And thank you so much, students. So I would request all of you to please like this particular video, to share it with as many aspirants as possible, so that even they can benefit from this particular video of Abhijit. And so let's wait for the second episode. Till then, have a good preparation and goodbye.